Hello. Hello. Good morning. Ma'am. FIB Good Constable. morning. Good morning. Shall we start? Yes, Good ma'am. morning. Okay. Good morning, dear. Okay. So yesterday we were discussing about the importance of communications in business. Am I right? Am I Yes, right? ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. The next new question: importance of communication in the corporate and global world. Okay, the first point is manage the complexity of the business organization. As already mentioned, with increase of size and scale of operations, present day, the business organization has to employ thousands of employees scattered as over which demand efficient management that demand free and flawless. Okay, so that whenever that this point is means manage the complexity of business organization, it means that whenever that different kind of organizations or different companies, when they have lots of people, that at that time the people or the employee demand that efficient management, those who can demand their free and flawless their facilities. ओके तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी और उसके जो बिजनेस रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक कंपनी में 20-25 लोग नहीं, लेकिन छोटी कंपनी हो तो या छोटा ऑफिस हो तो वहाँ पे 20-25 जन काम करते हैं। लेकिन जब बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे 1000 लोग काम करते हैं, 2000 लोग काम करते हैं। तो वहाँ पे उनको हैंडल करने के लिए एक एफिशिएंट मैनेजमेंट की जरूरत है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली? Yes, ma'am. Yes, Do you ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. understand? Yes, That ma'am. next point is information technology revolution. Since the last 3 decades in the IT department, with access of computers, the internet, iPod, video conferencing, which require proper maintenance and accurate data cutting across the geographical boundaries. Okay, so whenever we are talking about the IT or information technology, in the last 3 decades, the world is using computers, internet, iPod, and video conferencing. Okay, so whenever that these machines or these computers are used or internet are used, that they it has to be maintained in a proper way, and it has to be have that accurate data ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो लेक्चर ले रहे हैं तो वो ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं। ओके, ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं। एम आई राइट? Yes, Yes. ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, तो आपको जियोग्राफिकल डाटा मीन्स जियोग्राफिकल बाउंड्रीज पता चलता है कि हम कहाँ पे बैठे, मैं कहाँ पे बैठे हूँ, आप कहाँ पे हैं। जियोग्राफिकल जो डाटा होता है वो सब स्टोर होता है कि फॉर एग्जांपल जब हम अभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही चल रही है क्योंकि ऑनलाइन में आपको दिख रही हूँ। ओके, वीडियो यू कैन सी माई फेस, then I can see your face also. If you put on your video on, then I can see your face also. Okay, so जब ये इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जब हम आईटी मशीन इस्तेमाल करते हैं तो उसको मेंटेन करना वो भी एक जिम्मेदारी का काम है, और उसका जो रिक्वायर्ड डाटा होता है तो वो भी होना जरूरी है। तो उस डाटा को जो जो डाटा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको तुरंत ही या एक दिन बाद कि जैसे आपको लेक्चर होता है तो आपको यूट्यूब पे ये वीडियो भेजा जाता है कि अगर किसी का मिस हो गया है कि जियोग्राफिकल बाउंड्री की वजह से या नेटवर्क की वजह से किसी का लेक्चर मिस हो गया है, तो वो यूट्यूब पे वो वीडियो देख सकते हैं कि यूट्यूब पे वो सब्जेक्ट रिलेटेड वो पॉइंट समझ सकते हैं। तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू गिव प्रॉपर
information to each and every person. So IT helps us. Okay, do you understand? Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the next point is growing specialization. With the division of labor, work is now divided into the parts among the specialized or specialists for accuracy, which seeks proper coordination, trust, cooperation, understanding that demands efficient communication among all. Growing specialization. For example, कि अभी का जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट रिसेंट टाइम ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ओके, in that time the work is divided, the labor work is divided into different parts. Okay, the labor work is divided into different parts. Okay, that when we talk about degree, that BSc, BCom and BA. Okay, so 3 degrees are available. Okay, so every field has its own importance. Every field has its own importance. Okay, तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट फॉर एग्जांपल बिजनेस से रिलेटेड है, तो वहाँ पे बीएससी का बच्चा काम करेगा क्या बिजनेस से? फॉर एग्जांपल अकाउंट का काम है तो कौन सा वाला कौन सा डिग्री वाला चलेगा वहाँ पे? बीकॉम. ओके, Yes. बीए वाला चलेगा नहीं, बीएससी वाला चलेगा. ओके, अगर लेबोरेटरी में काम करना है तो वहाँ पे बीकॉम वाला चलेगा कि बीए वाला चलेगा? बीए वाला चलेगा. ये वाला. लेबोरेटरी में जैसे मेडिकल लेबोरेटरी होती है वहाँ पे मैं वो मैं बात कर रही हूँ, तो कौन बीएससी वाला चलेगा? बीएससी. हाँ, तो स्पेशलाइजेशन वहाँ पे हमको दिखाई देता है. तो स्पेशलाइजेशन फॉर एक्यूरेसी विथ सी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कि जब हम साथ में काम करते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग which can give the which can enhance the success of the business. कि जैसे जैसे काम करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, इतना अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए, इतना कोऑपरेशन होना चाहिए, इतना ट्रस्ट आपका एक दूसरे पे होना चाहिए, जिसकी वजह से जो काम होता है वो निखर के आता है. ओके, वो काम होता है कैसा होता है? निखर के आता है. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शॉप में, ओके, एक शॉप में एक ही शॉप की मीन्स एक ही है, दुकानदार एक ही है. आज उसके जो वर्कर्स लोग हैं वो आए नहीं है. अगर वर्कर्स और शॉपकीपर दोनों ही साथ में मिलकर काम करते हैं, कस्टमर आ रहे हैं, तो उस दुकानदार के लिए भी और जो वर्कर्स है उनके लिए भी कैसा होगा? अगर मिलजुल के काम करते हैं तो दुकानदार और वर्कर्स के लिए कैसा होगा? अच्छा होगा. लेकिन आप सोचो कि आज ये आए नहीं है, कि आज वर्कर्स आए नहीं है, तो दुकानदार अकेले दुकान हैंडल कर पाएगा ठीक तरह से? अगर नहीं कर पाएगा. नौकर नहीं होगे तो वो ठीक तरह से कर पाएगा? नहीं नहीं कर कर पाएगा वो. अगर नौकर है, दुकानदार ही नहीं है, ओके, तो नौकर इतना मीन्स इतना अच्छी तरह से कर पाएंगे क्या? हाँ, उसके शेड उसके जो मालिक है उसे जैसे उनको जितना पता रहता है उतना नौकर लोग को पता रहता है क्या? या वर्कर्स लोग को पता रहता है क्या? नहीं. हाँ? नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कोऑपरेशन चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हर एक जगह आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तो जिसकी वजह से आप अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो और निखर के आता है. तो कभी कभी देखो आप, जिसका दुकान है, जिसके पापा का दुकान है, अगर दुकान में आज यही नहीं है कि नौकर ही नहीं है, तो कहाँ से काम होगा? ठीक से काम नहीं होगा. काम तो होगा लेकिन काम का लोड बर्डन वहाँ पे बढ़ जाएगा. अंडरस्टैंड? यस और नो? यस मैम. मैं और दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ कि जब भी स्कूल में, फॉर एग्जांपल स्कूल में एक ही टीचर सब पढ़ाता है क्या? एक ही टीचर मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी एक ही टीचर पढ़ाते हैं क्या? नहीं. स्पेशलाइजेशन रहता है, सबका स्पेशलाइजेशन रहता है. मैथ्स साइंस पढ़ाने वाले अलग रहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले अलग रहते हैं, हिस्ट्री पढ़ाने वाले वही टीचर रहते हैं, हिंदी पढ़ाने वाले अलग रहते हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाले अलग रहते हैं. आप सोचो कि अगर सबका स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ, सब अलग अलग फील्ड में से नहीं आए, तो एक टीचर को कितना लोड हो जाएगा? एम आई राइट?
एक टीचर को कितना Yes. लोड हो जाएगा? 1 to 10 स्टैंडर्ड का उसको डिवीजन दिया गया है कि चलो आप हिंदी के स्पेशलाइजेशन हो, आप इंग्लिश के स्पेशलाइजेशन हो, आप मैथ्स के स्पेशलाइजेशन हो, तो सभी क्लास में आपको जाना है। लेकिन एक ही इंसान सभी क्लास में जा सकता है क्या? सबकी नहीं क्लास मैम। एक साथ ले सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नहीं। तो with the division of the labor work is now divided into the parts among the specialist। अभी ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया? Yes, ma'am. Yes Yes, मैम। Okay। अभी देखिए ये पॉइंट, ग्लोबल विलेज। द वर्ल्ड इज नाउ ग्लोबल विलेज विथ MNC। MNC मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज spread all over with the employee from the different nation with different languages, culture। Okay। जैसे हमारा जो वर्ल्ड है, that world is also known as the global village because the different people are coming together, they speak different languages, okay, they use different languages, they have different cultures, but though they work together। ओके। तो आप सोचिए कि कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू ब्रिज द गैप्स एंड वर्क टू अचीव द कंपनी मिशन एंड विजन। ओके। तो जब हम कंपनी के लिए काम करते हैं तो कंपनी के जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कंपनी हमें सैलरी देने वाली है, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें उनके लिए काम करना चाहिए। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन होता है जो दो लोगों के बीच की गैप को कम कर देता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आपको? दो लोगों के बीच की गैप को कम कर देता है। डू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? yes, ma'am. ओके। तो जब हम मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें कि छोटी बड़ी जो कंपनी होती है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ी हुई होती है। ओके। तो वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ किया जाता है, डिफरेंट पीपल आते हैं, डिफरेंट कल्चर हमको दिखाई देता है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि फॉर एग्जांपल जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, हाँ, डिटर्जेंट पाउडर होता है जो कपड़े धोने के लिए बनाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल एरियल, जब हम एरियल की बात करते हैं तो एरियल सिर्फ उस कंपनी तक ही सीमित रहा क्या? मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित रहा क्या? नहीं। उसमें काम करने वाले लोग भी अलग अलग होंगे, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के होंगे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ओके। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन होता है, होलसेलर के पास जाते हैं, फिर रिटेलर के पास आते हैं, फिर छोटे छोटे दुकान में ये सब कुछ ये माल पहुंचता है। तो वहाँ पे अगर वहाँ पे एक दूसरे से वहाँ उनका कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन गैप दिखाई दी, तो वो प्रोडक्ट बाजार तक आपको दिखाई देगा क्या? कोई भी प्रोडक्ट आपको बाजार तक दिखाई देगा क्या? कोई भी प्रोडक्ट आपको बाजार तक दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्यों नहीं दिखाई देगा? अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन कम्युनिकेशन होगा, सेलिंग और गुड सर्विस होगी, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट आपको बाजार में नजर आएगा। तो ये कम्युनिकेशन क्या करता है कि कम्युनिकेशन की वजह से लोगों का काम आसान हो जाता है, लोगों का काम आसान हो जाता है। ओके। डू अंडरस्टैंड? Do you understand? Yes, ma'am. Okay. Yes मैम। Yes. Then next point is growing competition. Competition among different organization is well-known factor to create new customer, maintain old one. Effective communication is important for the goodwill of the company. Yes, that we know that when when you put or when you start one business in the market, you have to compete with the others. You have to compete with the others, and to sustain in the market, it is your duty as the owner of it is your duty how you will maintain it। okay। so यहाँ पे क्या बताया गया है कि when you join or when you create the new customer, that you have to also maintain the old one। old जो कस्टमर होते हैं उनको उनके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कंपटीशन जैसे बढ़ता जा रहा है, हर एक फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है।
ओके, हर एक फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है। कि फॉर एग्जांपल हमारे दापोली में पहले सबसे पहले जो स्कूल थी तो एक एजी हाई स्कूल और एजी हाई स्कूल ऐसे एक या दो ही स्कूल थी, लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्कूल्स आर अवेलेबल इन दापोली. They are competing with each other because they need good teachers, they need good communication, they need each and everything which they can which on that basis which they can create the new स्टूडेंट्स. ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अभी कॉलेज भी हमारे यहाँ पे 2 या 3 कॉलेज है, लेकिन जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो उसका कुछ स्टैंडर्ड है, अपना कुछ स्टैंडर्ड है, इसकी वजह से आप इस कॉलेज में आए हैं. ओके, तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है. कि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जब कॉलेज का नाम लिया जाता है तो लेक्चर्स तो होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कभी लेक्चर्स में आते नहीं है या वगैरह, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है. तो जब हम कंपैरिजन करते हैं कि रेगुलरली लेक्चर्स कहाँ लिए जा रहे हैं या रेगुलरली कहाँ आपको सिखाया जाता है, तो यू विल फाइंड द रिजल्ट, यू हैव टू फाइंड द रिजल्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया है, ओके, तो छोटा मोटा बिजनेस आपने सपोज कोई एक इंसान है जिसने अपने बोला कि कैंडल का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो पहले वो छोटा सा दुकान या छोटी सी गाड़ी लगा के वो रास्ते पे बैठता था, लेकिन अभी उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है. तो बिजनेस बढ़ाने के लिए उसका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसके जो कस्टमर जो पहले से उसके पास चीज़ें ले रहे हैं तो उसको बनाए रखना है, और जो अभी नए कस्टमर उसके आने वाले हैं उसको वहाँ पे मेंटेन करना है. तो छोटी दुकान में से उसने थोड़ा सा बड़ा दुकान बना दिया. तो कैसे हुआ, उसके एक मेहनत की वजह से उसके कस्टमर को उसने गुड सर्विस और उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से उसका दुकान बड़ा हो गया. तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप कंपटीशन मार्केट में आपको कंपटीशन करना है, तो जो मार्केट की जो पोजीशन है, जो कंडीशन है, जो कस्टमर की डिमांड है, उसको देखते हुए आपको चीज़ें रखनी चाहिए. समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अभी दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे लिमिटेड सोर्सेस है. ओके, क्योंकि हमारा दापोली छोटा है, हमारे यहाँ पे लिमिटेड सोर्सेस दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम मुंबई जाते हैं या पुणे में जाते हैं तो हमें कितनी सारी दुकान दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? ओके, कुछ लोग रास्ते पे भी बैठते हैं. ओके, कुछ लोग रास्ते पे ही बैठते हैं. इट डजंट मीन कि रास्ते पे से लेना बुरी बात है, नहीं, वो वहाँ पे अपना धंधा लेके बैठा है, वो अपना वहाँ पे बिजनेस लेके बैठा है. बाजू में ही बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, अब बाजू में ही लोग सारे बैठे होते हैं. तो अपने हिसाब से, अपनी कम्युनिकेशन के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से वो कमाते हैं कि नहीं कमाते? पूरा बाजार ही भरता है कि नहीं भरता है? पूरा बाजार वहाँ पे लगा रहता है, मार्केट वहाँ पे लगा रहता है, कपड़ों का हो या टॉयज का हो या किसी और चीज़ का हो. तो वहाँ पे बहुत सारे आपको मार्केट में बहुत सारे आपको शॉपकीपर दिखाई देंगे या छोटे मोटे ट्रेडर्स दिखाई देंगे. तो वहाँ पे उनको सिर्फ अपने कस्टमर उनके पास कैसे आएंगे, ये उनको सोचना है. अगर फॉर एग्जांपल किसी शॉपकीपर ने दूसरों की दुकान में देना, वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर है, वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर है, तो अपनी दुकान पे ध्यान दे पाएगा क्या, या अपने कस्टमर को हैंडल कर पाएगा क्या? अपने कस्टमर को हैंडल कर पाएगा क्या? नो मैम. ओके, तो उसको ध्यान कहाँ देना है? अपने कस्टमर पे. उसको ध्यान कहाँ देना है? अपने कस्टमर पे ध्यान देना है. ओके, जैसे मैंने आपको पहले जिस एक पॉइंट हुआ था, मैंने आपको पहले बताया था, अगर किसी कस्टमर के साथ उसने अच्छी तरह से बात नहीं किया तो वो कस्टमर वापस आएगा क्या उसके दुकान में? कस्टमर वापस आएगा क्या? नहीं आएगा. तो वहाँ पे कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड यूनियन. मैनेजमेंट हैज टू मेंटेन हेल्दी एंड congenial environment, a smooth processing of work, and influence the leaders to make their demand short with seek efficient communication. ज़्यादातर हमको ये जो प्रॉब्लम आती है
जो डिमांडिंग वगैरह रहती है वर्कर्स की, तो हमें मिल या बड़ी बड़ी कंपनी में हमको दिखाई देती है। तो वहाँ पे मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, तो मैनेजमेंट को एक हेल्दी इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करना चाहिए कि कम्युनिकेट हेल्दी एनवायरनमेंट मीन्स उनका मैनेजमेंट और वर्कर्स का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी डिमांड थोड़ी कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सके, जितना काम करेंगे उतना उनको पैसा मिल सके। तो ये फैक्टर ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक वर्कर की वजह से, फॉर एग्जांपल एक वर्कर काम नहीं कर रहा है तो उसने दूसरों को भड़काया, दूसरे ने तीसरे को भड़काया, तो पूरा का जो काम हो जाता, जो पूरा काम होता है वो पूरे दिन का काम वहीं पे अटक जाता है, वहीं पे रुक जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में बैठ के बात हो जाए तो वहाँ पे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता गया, तो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम्स कम नहीं होने वाले। लेकिन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में होगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई देगा और काम अच्छा होते हुए दिखाई देगा। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू? All of Yes, you, do ma'am. you understand this point? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last. Thank you. This is our first unit is over in BC. This is our first unit is over in BC. Okay. अभी आप अपना जो पहले से जितने क्वेश्चन है 7-8 क्वेश्चन है या 5-6 क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा आप अपनी बुक और मोबाइल में देखिए। आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं रहा, आपको मैं 5 मिनट दे रही हूँ। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आता आप देखिए और मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ क्विकली, रैपिडली। आप मुझे अभी का अभी बताएंगे, ठीक है? यस और नो, क्योंकि आपके इसके नोट्स निकालने हैं, आपको इसके नोट्स निकालने हैं।